Wait for 2-3 minutes, then I will start the lecture. Good morning. Yes. I'll start करेंगे combination of errors. Combination of errors. First, error in addition. Error in addition. Suppose Z लिखा मैंने. Z is given as A plus B. क्या लिखा है? Z कोई एक फंक्शन है ना, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? A and B. Z depends on A and B. तो एरर जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एरर इन एडिशन. तो z इक्वल्स टू लिख दिया a प्लस बी. z इक्वल्स टू a प्लस बी. मैं ऐसा मान लेता हूँ. देखो एक चीज इससे पहले कुछ बता देता हूँ, नहीं तो फिर तुमको एडिशन में आऊंगा. पहले उससे पहले कुछ आप समझ लीजिए. पहले एक होता है लीस्ट काउंट. Excuse me, sir. यस. Sir, is this like the lecture for JEE mains also? यस, जेई मेन ना. Yes, sir. Like we got this link in the group. You were not in this batch. No, sir, we're not in the this batch. It's like we were a 7th mains batch. We're the mains 2 batch. Okay, combined one. Okay, merged. Uh, So have you studied about error? no, sir, we haven't studied about error. We are doing kinematics 2 right now. Okay. So have you studied about unit and dimension? No, sir, we haven't done units and dimension. So इसको स्टॉप कर देते हैं फिर, बिकॉज बैच मर्ज हो चुका है. ठीक है. काइनेमेटिक्स 2 से स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है. Okay. यहाँ पे हाँ कंबाइन हो चुका है, उसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. काइनेमेटिक्स 2 से स्टार्ट करते हैं. काइनेमेटिक्स 2. काइनेमेटिक्स 2. यस यस, सेपरेटली है ना. सेपरेटली अपन क्या करेंगे? We will finish this particular concept, combination of error. कुछ पेजेस स्किप कर दो. कुछ पेजेस जैसे 10 पेजेस आप वहां पे, हाँ 10 पेजेस के बाद जो है काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट कीजिए. 10 पेजेस आप छोड़ दीजिए एंड देन काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट कीजिए. ठीक है. देन काइनेमेटिक्स 2 जो है आपको स्टार्ट कीजिए. देखिए काइनेमेटिक्स 2. तो काइनेमेटिक्स 2 है, यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज होता है. ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस वाला पार्ट आता है. एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स. You have already studied about these things in calculus. Application of calculus in kinematics. Calculus in kinematics. Application of calculus in kinematics. देखते हैं. X क्या रिप्रेजेंट करता है? X represents displacement or position. Correct? Displacement or position along x direction. Along x direction. तो we are discussing 1D motion. पहले क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं? 1D मोशन. तो 1D मोशन में क्या होगा? x को आपने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन. y भी होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन. तो here x is displacement of particle along x direction. अगर आपने यहाँ पे y लिखा तो y is the displacement of particle along y direction.
and z would be the displacement of particle along z direction. तो ये x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. सेकंड, कहीं पे अगर आपने v लिखा तो v would be velocity, velocity of particle, velocity of particle, and a would be the acceleration, yeah, acceleration of particle, acceleration of particle. तो फर्स्ट थिंग आपको क्या बताया गया होगा, फर्स्ट कैलकुलस में भी बताया गया होगा कि v जो होता है, v इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, rate of change of position, rate of change of position is known as velocity, rate of change of position is known as velocity. dx by dt, rate of velocity क्या है, it is, this is also known as instantaneous velocity. सेकंड बैक वाले एक बार मुझे ये बताओ, have you studied about instantaneous velocity, instantaneous acceleration in kinematics 1? Do you know this v equals to dx by dt, a equals to dv by dt? चलो अब तो कोई टेंशन ही नहीं, it is, हाँ तो आज यही होगा, सेकंड में से स्टार्ट होगा. It is the rate of change of, it is the rate of change of position with respect to time. v equals to आप लिखेंगे 1d है तो dx by dt, a क्या हो जाएगा आपका dv by dt, also dv by, आप dx से डिवाइड कर दो, चेन रूल लगा, dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx by dt. तो a इक्वल्स टू dv by dt, आपने क्या किया, dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv by dx into dx by dt, into dx by dt. कॉपी कर लो, लिखा. Has everyone noted things down? Then copy it. Yes. Ten pages. 10 pages. 10. Done. देखो कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करना ये इंपॉर्टेंट. सपोज a is given as dv by dt, आप ये फॉर्मूला कभी यूज करेंगे व्हेन, जैसे इक्वल्स टू v dv by dx, व्हेन a is a function of t or v is a function of t, a is a function of t और v is a function of t, मतलब a t का फंक्शन होगा और v भी t का फंक्शन होगा, देन इन दैट केस, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन आपको क्या लिखना है, a equals to dv by dt, क्या लिखना है, a equals to dv by dt. When a is a function of t or v is a function of t, then in that case, है ना, you have to use a equals to dv by dt. When a is a function of b, when a is a function of x or v is a function of x, when a is a function of x or v is a function of x, it means a equals to x square plus 2x plus 3, something like that. So when a is a function of x or v is a function of x, then a would be v dv by dx. तब आप क्या यूज करेंगे, a equals to v dv by dx, है ना. If a is a function of time और v is a function of time, t क्या है, टाइम है, तो a अगर फंक्शन होगा किसका, टाइम का, एंड b भी फंक्शन होगा टाइम का, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, you have to use a equals to dv by dt. When a is a function of x or v is a function of x, x means position or displacement, then in that case you have to use a equals to v dv by dx. आपको क्या यूज करना है, a equals to v dv by
dx. When a is a function of b, when a is a function of b, then a ये भी यूज हो सकता है, dv by dt भी यूज हो सकता है, या v dv by dx भी यूज हो सकता है. अब क्वेश्चन में पूछा, अगर टाइम अगर पूछा गया है ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज dv by dt. फॉर टाइम, फॉर t, इसके लिए क्या आएगा, a इक्वल्स टू dv by dt. फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन क्या यूज करेंगे आप, a इक्वल्स टू b dv by dx. फॉर v क्या यूज करेंगे, a इक्वल्स टू dv by dt. When a is a function of b, है ना, and you have to find the value of time, or time is given, you have to find velocity, and in that case you have to use a equals to dv by dt. When a is a function of b and you have to find position, then in that case equals to b dv by dx. तो a equals to dv by dt and b dv by dx कभी यूज होगा, ये क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर. नेक्स्ट, अगर आपको पोजीशन, सपोज पोजीशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी. आपको पोजीशन से क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है. तो आप v को क्या लिखोगे, dx by dt. सपोज v गिवन है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप a को क्या लिखोगे, dv by dt. मतलब अगर आप पोजीशन से वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट. इस साइड से पोजीशन से एक्सेलरेशन के टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन. If a is given, you have to find velocity. A acceleration given है, आपको velocity find करनी है, या velocity given है, you have to find position x find करना है. आप रिवर्स में जा रहे हैं, क्या given है यहाँ पे, acceleration given है, आपको velocity find करनी है, या velocity given है, you have to find displacement. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. क्लियर, समझ लीजिए. इफ पोजीशन इज गिवन, you have to find velocity and acceleration. If position is given, you have to find velocity and acceleration, or if velocity is given, you have to find acceleration. है ना, आप इस ऐसे आ रहे हो, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ऐसा है. ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है. इस केस में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन. इफ एक्सेलरेशन इज गिवन and you have to find velocity and displacement, then in that case you have to use integration. You have to use integration. Clear है, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन. एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन, इंटीग्रेशन. कॉपी कर लीजिए इतना पहले.
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर 2D पे जाएंगे अपन। Position of particle is given as x equals to t cube minus 360 square plus 3t plus 4 meter, where t is in second. x किस में मीटर में, t is in second. आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन, find the velocity and acceleration of particle. Acceleration of particle at t equals to 1 second. Second, find the velocity of particle. Find the velocity of particle when its acceleration when its acceleration becomes zero. Find it. एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। क्या गिवन है, x is given as a function of t. You have to find velocity, -6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। You have to find velocity and acceleration of particle. You have to find velocity and acceleration of particle. So x is given as t cube minus 6t square plus 3t plus 4 plus 4. Velocity v क्या आ जाएगा, dx by dt. dx by dt तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर है, 3 t क्यूब है तो 3t स्क्वायर माइनस 6 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t प्लस 3 इंटू 1 और ये वाली वैल्यू 0 तो कितना आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू dv बाय dt। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 3, ये t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t माइनस 12, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 3 is a constant, इसका डिफरेंशिएशन 0, it would be 60 minus 12. At t equals to 1 second, first question, at t equals to 1 second, v equals to 3t square minus 12t plus 3, so v equals to 3 into 1 square minus 12 into 1 plus 3, it would be 3 minus 12 plus 3 minus 6 meter per second. Second, acceleration is 60 minus 12, so 6 into 1 minus 12, acceleration is minus 6 meter per second square. Acceleration is minus 6 meter per second square. Second question is find the velocity of particle when its acceleration becomes 0. इससे acceleration क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में आपको फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी। कॉपी कर लीजिए।
Second, you have to find velocity when acceleration becomes zero, है ना? The velocity is what? Velocity was 3t square minus 12t, 3t square minus 12t plus 3, and acceleration is 60 minus 12, correct? तो according to given question क्या हो जाएगा? Now acceleration will be zero. Acceleration को zero करना है ना? इसी instant पे find करना है. You have to find the value of velocity. तो a को आपने zero कर दिया, तो a क्या है? A is nothing but 60 minus 12. तो 60 minus 12 equals to 0. तो 60 equals to 12. It means t equals to half. T equals to 2 seconds. Correct? है ना? T equals to 2 seconds. तो at t equals to 2 seconds, acceleration of particle would be 0. Acceleration क्या होगा? Particle का 0 हो जाएगा. तो 2 seconds पे you have to find the value of क्या? Velocity ना. तो at t equals to 2 seconds, p equals to 3t square minus 12t plus 3. So 3 into 2 is square minus 12 into 2 plus 3. So 4 into 3, 12 minus 24 plus 3. 15 minus 24 minus 9. Minus 9 meter per second. Minus 9 meter per second. Clear है? Yes. We have already discussed these kind of thing in calculus. एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है, t is given root x plus 3. नहीं, calculus, application of calculus. Application of calculus in kinematics, है ना? It includes both 1D and 2D motion. It includes both 1D and 2D motion. So first we will discuss about 1D and then 2D. So t equals to root x plus 3. T is time, x is displacement. X is displacement. Question में क्या पूछा गया? Find the displacement of particle. Find the displacement of particle. Find the displacement of particle when its velocity is 0. When its velocity becomes 0. ऐसा लिखना. Find the displacement of particle when its velocity becomes 0. Find it. Displacement is 0. चेक कर लेते एक बार. t equals to root x plus 3. तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, t minus 3 equals to root x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा t minus 3 का स्क्वायर. ओपन भी कर सकते हैं आप, ओपन कर दीजिए. t square minus plus 9 minus 60. Correct? A square plus b square minus 2ab. Velocity is what? Dx by dt. V equals to dx by dt. So it would be 2t plus 0 minus 6 into 1. So velocity equals to 2t minus 6. 2t minus 6. So now v is 0.
v को 0 पुट कर दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा 2t minus 6 equals to 0. तो 2t equals to 6, therefore t equals to 3 second. What is the value of t? It would be 3 second. मतलब at t equals to 3 second, velocity of particle would be 0. Velocity of particle would be 0. है ना? तो अब इसी इंस्टेंट पे you have to find the displacement, or you can say position of particle. You can say position of particle. So at t equals to 3 second, x equals to t minus 3 का स्क्वायर है, तो 3 minus x is position ना, here x क्या है, यहाँ पे लिख लेना साइड में, x is position, x is position. तो 3 minus 3 का स्क्वायर, तो x is 0. x क्या हो गया 0 हो गया. पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप, देखते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसका. x is 0. अब मैंने यहाँ पे लिखा है x पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं. समझो, डिस्प्लेसमेंट होता इफ x इज अ डिस्प्लेसमेंट देन योर आंसर वुड बी 0. आंसर क्या हो जाता 0 हो जाता. मैंने यहाँ पे अभी क्या लिख दिया, x क्या है पोजीशन है, x क्या है पोजीशन है. यस नहीं सेम नहीं होगा ना. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट. पोजीशन इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, डिस्टेंस, सम डिस्टेंस. पोजीशन इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. पोजीशन क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट. इतना पहले कॉपी करो. मैंने यहाँ पे x लिख दिया पोजीशन. अगर मैं यहाँ पे x लिखता डिस्प्लेसमेंट, देन इन दैट केस आंसर वुड बी 0. अगर मैंने ये लिखा होता x इज डिस्प्लेसमेंट, देन इन दैट केस आंसर वुड बी 0. आंसर वुड बी 0. बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज पोजीशन, देन डन. अब देखिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, ये x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है. तो ये कभी है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे x पार्टिकल की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 होगी. तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कभी से करेगा, t इक्वल्स टू 0 से, है ना. तो अगर आप चेक करेंगे एट t इक्वल्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3. ऐसा था ना, ये 0 पुट कर दो, रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3. तो इस केस में ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, 0 इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. करेक्ट, एक मिनट रखो, है ना, बिकॉज अगर t इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है. ये वाली चीज क्या है, कॉपी मत करना, ये वाली चीज क्या है, नॉट पॉसिबल है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए पोजीशन नहीं होगी, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. ये पोजीशन नहीं होगी, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि पोजीशन होगा ना तो t इक्वल्स टू 0 पे रूट एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना, ना ना, x विल बी -9. कैसे हो जाएगा -9, देखो ना, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 ना, x प्लस 3. एट t इक्वल्स टू 0 आप क्या लिखोगे, यहाँ से रूट एक्स इक्वल्स टू -3 ना. रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी क्या, रियल वैल्यूज के लिए कभी नेगेटिव होगा क्या रूट, रूट एक्स कांट बी नेगेटिव. नहीं समझा, अरे ये रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी ना. तो रूट एक्स कांट बी नेगेटिव. स्क्वायरिंग वो तो अलग हो जाएगा ना यार, स्क्वायर कर दिया तो वो तो अलग चीज है. बट ओरिजिनल फंक्शन देखो ना, तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, यही है ना. अरे ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ये है, इस पे चेक करना है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा पूरा. समझो,
इस चीज को समझिए, कहीं पे लिखा है x इक्वल्स टू √4, कहीं पे ऐसा लिख दिया मैंने x इक्वल्स टू √4, तो x की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू, कहीं पे ऐसा लिख दिया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, नहीं, x इक्वल्स टू √4, देन आंसर वुड बी 2. x equals to √4, then answer would be 2. If it is written as x square equals to 4, then answer would be yes. Correct. Sir, Imaginary. Yes. sir, in maths we had learned that root is always positive, but if we take Yes. but like if we take the square on the other side, then it अरे becomes एक plus minus. wait ना, आराम से. Why are you taking a square both sides? Why are you doing this? वो तो कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा उसको भी चेंज कर देगा, फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा उसको चेंज कर देगा, उसको रियल बना देगा, फिर क्या करोगे? जो ओरिजिनल फंक्शन है वो डिफाइन है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे। अरे ये जब पॉसिबल ही नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं जानना है ना, अभी नहीं जानना है कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, नहीं जानना है, इतना समझ लो, आपको बताया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा ना मैथ्स में, तो समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, +-2। ये बताइए क्या ये और ये दोनों सेम है? No, sir. अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो अननेसेसरी आपने एक रूट को इंक्रीज कर दिया है। पहले सिर्फ वैल्यू 2 आ रही थी, अगर आप स्क्वायर करोगे तो +-2 आ जाएगा, एक रूट इंक्रीज हो गया ना, पहले 2 आता था अभी -2 भी आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में ये वाली चीज क्या होगी, ये पोजीशन नहीं होगी, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो आप पोजीशन कट कर देना, डिस्प्लेसमेंट लिख देना और आपका आंसर 0 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? बिकॉज पोजीशन अगर होगा वो तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी, ये चीज डिफाइन। क्लियर है? ये वाली रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो वो अगर रियल वैल्यूज है ना तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, इट कांट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं होता है, वरना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आता है कुछ, वो आपको बताया जाएगा मैथ्स। इसीलिए ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, इसको कॉपी मत करना फिर, तो उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर देना। क्या कर देना, डिस्प्लेसमेंट। हाँ यही होता है, करेक्ट। माइनस नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा होगा -√3 है ना, -√3, तो इसको आप लिखेंगे इस वाले में, जैसे माइनस आयोटा इंटू -√3, तो ये होता है √3, ये वाली वैल्यू हो जाती है। यस, इतना नहीं जानना है। वो ये बताओ, ये चीज पॉसिबल है, 80 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x? What is the value of √x? √x equals to -3। √x की वैल्यू क्या होगी, -3। ये पॉसिबल है, √x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नॉट पॉसिबल ना, तो फिर इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हो तुम? स्क्वायर करने से क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ समझो, अगर आपने x इक्वल्स टू √4 लिखा, आपको बोला नहीं सर मुझे ये नहीं जम रहा है, रूट मत लिखो, ऐसा मत लिखो सर, आप स्क्वायर कर दो, x² इक्वल्स टू 4। अब ये बताओ, अगर आप इससे x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू +-2 होगी ना, बट अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे x की वैल्यू 2 होगी, स्क्वायर करने से क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज हो जाएगा। पहले सिर्फ एक ही आ रहा था, वैल्यू कितनी आ रही थी, x की वैल्यू एक ही आ रही थी, अभी x has 2 वैल्यूज, x has 2 वैल्यूज। स्क्वायर करने से क्या हो गया, इसका स्क्वायर किया, क्या हो गया, एक वैल्यू जो है x की इंक्रीज हो गई। Sir, but on squaring √x, why will the root increase? Just x, the root will go and you'll get equal to 9, right? अरे मेरे भाई, ये बताओ मुझे ये x इक्वल्स टू -3 है, कभी आज तक पढ़ा है रूट यहाँ पे ऐसा पढ़ा है कि इसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, मुझे ये बताओ पहले। No, sir, no. तो फिर कहाँ यहाँ पे कैसे आ रहा है तुमको, ये क्यों क्लिक हो रहा है कि सर स्क्वायर कर दूं?
स्क्वायर करने से यहाँ पे ये समझ में आया, स्क्वायर करने से एक वैल्यू x की इंक्रीज हो गई, ये बताओ पहले मुझे। यस सर, ये समझा। स्क्वायर करने से एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आप स्क्वायर मत कीजिए। ऐसा नहीं कि इसको स्क्वायर करके आंसर ला दिया, रॉन्ग हो जाएगा फिर। अननेसेसरी जो है एक रूट इंक्रीज हो जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो स्क्वायर नहीं करना है। पहले जो इसका ओरिजिनल फंक्शन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट। इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ऐसा नहीं कि x रूट एक्स इक्वल्स टू -3 लिख दिया, आपने आंसर कर दिया, अरे x की वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर दिया, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा x इक्वल्स टू 9, सेकेंड x इक्वल्स टू कुछ भी 3 प्लस माइनस करके एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। नॉट पॉसिबल, तुम करके आ जाओगे x इक्वल्स टू 9, नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया होगा दोनों साइड, करके आ जाओगे x इक्वल्स टू 9, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे स्क्वायर किया, जैसे आपने स्क्वायर किया, एक वैल्यूज खुद से समझो। यहां से देखो, यहाँ पे एक मिनट समझिए, x इक्वल्स टू, यहां से समझ लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू क्या है, √4 है, करेक्ट। अब मुझे बताओ कितने को लग रहा है कि इसकी वैल्यू 2 होगी या +-2? सबको ये लग रहा है कि x की वैल्यू 2 होगी। यस सर। अगर आपने स्क्वायर कर दिया, आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा। किसी को ये भी लग रहा है कि सर एक यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 ही होगी, नहीं होगी, ऐसा लिख दो। इतना डाउट आ रहा है तो ऐसा लिखो, x स्क्वायर -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 भी आएगी और x इक्वल्स टू 2 भी आएगा। तो अब देखो, स्क्वायर करने से x की वैल्यू क्या हो गई, +-2 आ गई ना यार। पहले क्या आ रही थी वैल्यू 2, तो एक वैल्यू इंक्रीज हो गई ना। अरे एक वैल्यू ये नहीं आनी थी, इंक्रीज हो गई ना। यस स्क्वायर सर। करने से एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। अच्छा, ऑप्शन मान लो ऐसा दिया रहेगा, ऑप्शन ए x इक्वल्स टू 2 ऐसा दिया हुआ है, मान लो x इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑप्शन x इक्वल्स टू -2, थर्ड ऑप्शन x इक्वल्स टू +-2, फोर्थ ऑप्शन, हाँ वो रहेगा x इक्वल्स टू +-2, नन ऑफ दीज। अब बताइए व्हाट वुड बी योर आंसर, जिसका डाउट है वही बताएगा, दक्ष बताएगा सर व्हाट वुड बी ए। योर आंसर। ये आएगा। बट अगर तुमने स्क्वायर कर दिया तो ये वाली वैल्यूज आ गई ना, तुम बोलोगे सर स्क्वायर करने से, फिर तो तुम्हारा ये वाला जस्टिफिकेशन कहाँ गया। अभी जो तुम जस्टिफाई कर रहे थे स्क्वायर करेंगे तो सर 9 आएगा, तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ तो मुझे 2 वैल्यू आ गई, तो मैं ए क्यों लिखूंगा, मैं तो सी लिखूंगा ना यार, थर्ड लिखूंगा ना। बट आंसर तो 3 होगा नहीं ना, आंसर तो यही होगा ना। सर ये मुझे समझा, लेकिन यहाँ पे x is not under root ना, it's not inside a root, the other part, the RHS is under a root. ये बताओ ये वाली वैल्यू क्या होती है, वही तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसे √4 है, √4 यही है ना, √4 यार। यस सर। तो √4 की वैल्यू क्या आई, 2 आई ना, -2 आई क्या ये वैल्यू। नो सर। तो रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी, मुझे ये बताओ ना पहले। नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नेगेटिव है ना ये, यस सर, यस। इस पूरे रूट की वैल्यू इट कांट बी नेगेटिव, रियल नंबर में कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इट कांट बी नेगेटिव। तो आप बोलोगे ओके नहीं सर, सर ओके। इसका स्क्वायर कर देते तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो थोड़ी है कि आपने स्क्वायर करके पॉजिटिव कर दिया तो एक रूट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसको कॉपी मत करना, ठीक है, इसको आप नोट मत कीजिए। तो ये सर समझ so में we आना चाहिए can कि अगर क्या, sir we can say that squaring is not a justification that previous step is right. यस, Okay sir, okay. अदरवाइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एक, वो पता है। पेज नंबर 5 रहेगा ये, वो कुछ तो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऐसा लिख दिया x इक्वल्स टू √v+1। इस बार इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है v जो है, x जो है
ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, इस बार पोजीशन, क्योंकि v 0 भी होगा तो ये 1 हो जाएगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, find the acceleration of the particle, find the acceleration of the particle at x equals to 5 meter, x equals to 5 meter पे एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। इसको कॉपी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस पेज। पिक्चर लेना है तो ले। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। अच्छा, किसको क्या क्लिक हो रहा है कि इंटीग्रेशन होगा या डिफरेंशिएशन होगा, मुझे ये बताओ पहले, क्या क्लिक हो रहा है इससे? डिफरेंशिएशन, यस। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है, ओके, एक बार चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन, करेक्ट, क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दो बताया था, v dv by dt, और एक क्या बताया, v dv by dx। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक किसी का फंक्शन a तो गिवन है ही नहीं, x गिवन है, x का फंक्शन ऑफ v है, x का तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो कौन सा लगेगा? तो आपको क्या बना देना है, यहाँ पे देखो v dv by dx है, तो आप ऐसा फंक्शन बनाइए, कैसा फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा? आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा v का, v इज अ फंक्शन ऑफ x। v को किसका फंक्शन, मतलब v किसका फंक्शन होगा, तो x का होगा, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना इसको, v dv by dx। तो यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ v है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू मेक v एज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देखिए एक बार, तो यहाँ पे 240 आ रहा है, हो सकता है आंसर, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। फिर क्या है, x इक्वल्स टू v प्लस 1, तो यहाँ पे मैं v को किसका फंक्शन बनाऊंगा, x का, तो v एक साइड होगा, x एक साइड होगा, तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस 1, तो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे क्या आ गया, v इज अ फंक्शन ऑफ x आ चुका है, v किसका फंक्शन आ चुका है, x का, तो एक्सेलरेशन अभी क्या होगा, इक्वल्स टू v dv बाय dx, पुट कर दीजिए वैल्यू, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स, वी इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एट x इक्वल्स टू 5 मीटर, x इक्वल्स टू 5 मीटर, a इक्वल्स टू 2, एक पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फिर जो भी एक्सप्रेशन आया है वो, फिर उसके बाद इसको x की वैल्यू, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 1, 24 इंटू 10 मतलब 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट आंसर 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका आंसर नहीं आया कॉपी में नोट इट डाउन।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा लग दिया v इक्वल्स टू 2 minus t, v equals to 2 minus t. Find first, find the displacement of particle, find the displacement of particle in 3 seconds, in 3 seconds. Second, find the distance covered by particle in 3 seconds. Find the distance covered by particle in 3 seconds. Given at t equals to 0, x equals to 0. मतलब t equals to 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x equals to 0 पे, ये given. Find the displacement of particle in 3 seconds and distance covered by particle in 3 seconds. अनम्यूट कर लीजिए खुद से, है ना, किसी कोई डाउट आ रहा है खुद से अनम्यूट करके, है ना, आप पूछ। तो you have to find the displacement of particle in 3 seconds and distance covered by particle in 3 seconds. Given at t equals to 0, particle is at origin. Particle is at origin. डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं डिस्टर्ब तो वो समझ में आ रहा है कि तुम जो वो डिस्टर्ब करने वाले हो, है ना। ओरिजिनल तुम्हारा जो आईडी है उससे आओ, वरना फिर घर जाओ, ठीक है। एक मिनट रुको यार, वो फिर से आएगा तो मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे इरिटेट हो रहा हूँ ये, तो फिर आप लीव कर जाइए उस टाइम पे, बाद में लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मन नहीं है रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बट ये नहीं कि डिस्टर्ब नहीं करना है लेक्चर, ये क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलेगा ना, माइनस एक्स 3 सेकंड तो दिया हुआ ना, इन 3 सेकंड t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। t इक्वल्स टू 3 पे फाइंड करना है आपको, तो आपको कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा ना फाइंड करने के लिए, तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, वो तो सिंपल हो। कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिस्टेंस होता है ना, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या है, 2 माइनस टी। आपको पता है वेलोसिटी गिवन है, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v को आप क्या लिखोगे, dx बाई dt। v को क्या लिखोगे, dx बाई dt, ये हो जाएगा 2 माइनस टी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, v इक्वल्स टू dx बाई dt, 2 माइनस टी। x वाले टर्म को एक साथ 2 माइनस टी dt, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 2 माइनस टी dt ऐसा हो जाएगा। आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए लिमिट्स कैसे पुट करना है, t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू जब 0 होगी, x की वैल्यू क्या है, 0। एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, आपको 3 सेकंड में फाइंड करना है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 टू x, ये 2 dt हो जाएगा तो 2t आ जाएगा यार, ये हो जाएगा t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, 0 टू 3, 0 टू 3, तो यहाँ से x माइनस 0,
ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये जो भी है अपर लिमिट माइनस टी स्क्वायर बाई करेक्ट, टी स्क्वायर बाई 2 करेक्ट करेक्ट टी स्क्वायर बाई 2, इट विल बी x इक्वल्स टू ये जगह 6 माइनस 9 बाई 2, 6 माइनस 9 बाई 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 4.5, तो x जो होगा वो आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल्स टू 1.5, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना सिंपल है, डिस्टेंस में थोड़ा सा ट्रिक है, कॉपी करिए फिर मैं, है ना, आई विल एक्सप्लेन सेकेंड वन, नोट इट डाउन। डन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड, एक बार उसको चेक कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी u, a particle is moving along positive x direction with initial velocity u, but it is retarding, है ना। मोशन कैसा है, here motion of particle is retarded, है ना, तो retarded motion है यहाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो after some time velocity of this particle becomes 0, हो जाएगा 0, सपोज t equals to 0 से t equals to t पे है। अगर आपको फाइंड करना था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t equals to 2t, यहाँ पे t equals to 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 0 हो गई है। आपको फाइंड करना था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2t सेकंड या t by 3t by 2 सेकंड्स, नंबर ले लेता हूं मैं कोई, सपोज t equals to 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0 एट t equals to 2 सेकंड या t equals to 3 सेकंड, किसी भी सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड। आप ये बताइए कि पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, बट जो टाइम है वो 2 सेकंड है,
और आपसे पूछा गया 3 सेकंड में आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो क्या ये रेस्ट में ही रहेगा क्या? No, Either sir. particle remains at rest or move with some velocity. तो ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहेगा ना, अभी क्या होगा कि बिकॉज पीछे आएगा। एक्सेलरेशन तो इसका इस डायरेक्शन में है, हाँ एक्सेलरेशन तो इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है, तो पहले ये इस डायरेक्शन में आएगा, यस, यहाँ पे वेलोसिटी दिस पार्टिकल बिकम 0 एंड विट, हाँ इट विल रिटर्न बैक, इट विल रिटर्न बैक, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में सपोज ये यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से यहाँ पे आ चुका है इन गिवन टाइम इंटरवल, जो भी टाइम इंटरवल गिवन है ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। आप ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हियर? डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस वन, यही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डू यू एग्री विद दिस? दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा पार्टिकल, बट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो ये होगा दिस प्लस दिस ना, डिस्टेंस क्या होगा दिस प्लस दिस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, एंड आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस। पहले इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस है ना कांट डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये यहां से यहां भी जाएगा, इंक्रीज होगा, और यहां से आएगा तो भी इंक्रीज होगा, मतलब आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा और ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? डू यू हैव एनी डाउट, एनीवन? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक, डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल आएगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला सिर्फ मत लगा दो, जैसे v इक्वल्स टू आपने लगा दिया dx बाई dt, और v की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आपको x आ जाएगा, जैसे v क्या था यहाँ पे 2 माइनस टी इक्वल्स टू dx बाई dt, तो dx की वैल्यू क्या हो जा रही थी 2 माइनस टी dt, करेक्ट। तो आप कभी भी डायरेक्ट यहाँ से ऐसा फॉर्मूला मत लगा दो 0 to 3 0 to x, from here you will get the value of x, आंसर जो आया है वो सही है, from here you will get the value of x, but x यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज x क्या होता था, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, तो x आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आपको एक बात चेक करना पड़ेगा, क्या, वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है इन गिवन टाइम इंटरवल। In first 3 seconds, either velocity of particle becomes 0 or not, becomes 0 or not. तो चेक कर लीजिए एक बार, v को 0 पुट कर दीजिए, तो v क्या था आपका 2 माइनस टी इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड, मतलब एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, फिर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा, t इक्वल्स टू 2 पे 0 हुई है, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना पड़ेगा, फिर अलग से ये फाइंड करना पड़ेगा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, तो इसका मॉड लगा देंगे आपको पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मॉड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। एक बार कॉपी कर लो इसको, फिर फाइंड करते हैं। आंसर आई थिंक 2.5 सही आ रहा है सबका, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। लोअर पार्ट फास्ट थोड़ा,
तो जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो आपको एक बात चेक करना पड़ेगा कि वेदर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल becomes zero in given time interval or not. In given time interval or not. So you have to check it. Yes. Yes. If t has two values, it means particle, the velocity of particle becomes zero two times. तो कितनी बार वो रिटर्न बैक होगा, मतलब रिपीट करेगा मोशन को टू टाइम्स. Done. Done. अब देखो यहाँ से, तो अभी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू टू माइनस टी. तो आप लिखोगे dx बाई डी टी इक्वल्स टू टू माइनस टी. तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू माइनस टी डी टी. तो आप इसको ऐसे लिखोगे dx इक्वल्स टू जीरो टू एक्स टू माइनस टी डी टी, जीरो टू टू सेकेंड प्लस टू टू थ्री सेकेंड टू माइनस टी डी टी. आपको पता है ये नेगेटिव आएगा, मॉड लगा दीजिए. अगर ये समझ में नहीं आएगी कि सर किस में मॉड लगाना है, इसमें लगाना है या इसमें, दोनों में मॉड लगा दो. आपको पता है यहाँ से यहाँ तक वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है. दोनों में मॉड लगा दो क्योंकि डिस्टेंस है. तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा. तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x जीरो टू, ये हो जाएगा टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, जीरो टू प्लस मॉड, ये भी आ जाएगा टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, टू और ये थ्री. इसका एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा अभी मैं, पहले एक बार इसको कॉपी कर लीजिए. टू इंटू टू माइनस जीरो माइनस, ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, प्लस ये हो जाएगा टू इंटू थ्री माइनस टू माइनस वन बाई टू इंटू थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मॉड. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फोर बाई टू, फोर बाई टू मतलब टू, फोर बाई टू प्लस ये कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू वन, वन इंटू टू टू, ये कितना आ जाएगा नाइन माइनस फोर, फाइव बाई टू. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू टू प्लस ये कितना आ जाएगा टू माइनस 2.5. देखो ये नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए मॉड लगाया था कि वो पॉजिटिव हो जाए. क्या हो जाए, पॉजिटिव. ये क्या आ गया, नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव हो जाए. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2 plus 0.5. So distance covered by particle in 3 seconds is 2.5 meter. 2.5. Clear है? किसी कोई डाउट है anyone? सेकेंड मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, एक बार कॉपी कर लीजिए। वो कभी यूज होगा वो चीज भी क्लिक होनी चाहिए आपको कि सेकेंड मेथड वो जो है वो तो सिंपल है, आपने 1D में पढ़ा है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन 1D, बट वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मेथड आप 1D का इक्वेशन यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना। ये क्लियर है ना सबको? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल? मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला कभी यूज कर सकते हैं आप? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और v इक्वल्स टू u प्लस 8। ये फॉर्मूला कभी यूज करते हैं? 1D में तो यूज होता ही है ये, बट कभी यूज करते हैं? yes, when acceleration of particle is constant, when the acceleration of particle is constant, uniformly accelerated motion। so क्या बोलते हैं? uniformly accelerated motion, accelerated motion। तो मैं एक बार यही चेक करूंगा कि ये जो गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है। तो आई हैव टू चेक दैट कि गिवन मोशन ना, गिवन मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। अगर एक बार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके आंसर कर सकते, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला करके आंसर कर सकते। ठीक है, तब इतना इंटीग्रेशन की देयर इज नो नीड टू रिक्वायर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और v इक्वल्स टू u प्लस 8। ये कभी यूज करते हैं व्हेन a इज अ कांस्टेंट, मतलब मोशन of particle would be uniformly accelerated motion। in case of uniformly accelerated motion we can use s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2s, v equals to u plus 8। ये कभी यूज करना है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना कि गिवन जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग मोशन ऑफ पार्टिकल है ना वुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है then you can directly use this formula to get the value of s, to get the value of s। otherwise we have to integrate the given function to get the desired result, no? copied? अनिकेत, डन। वो वही एक बार मैं आगे बताऊंगा, उसी को तो मैं आगे बताऊं अल्टरनेटिवली। देखो यहां से v इक्वल्स टू क्या था, 2 माइनस टी। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है या नहीं। तो a की वैल्यू क्या होती है, dv बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, ये वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। तो a -1 तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना यार, -1 इज अ कांस्टेंट।
इसका मतलब इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो पार्टिकल यहां से जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t को 0 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे आप क्या लिखोगे, 2 माइनस 0, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, और ये रिटार्ड कर रहा है, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। अब आपको पता है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस यहाँ से आएगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना होता तो डायरेक्टली कर लेते आप, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, s इक्वल्स टू डायरेक्ट पुट कर देते, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट अ गिवन फंक्शन। u की वैल्यू कितनी है 2, कितने टाइम तक चाहिए 3 सेकंड, प्लस हाफ a की वैल्यू -1, 3 स्क्वायर, तो 6 माइनस 9/2, तो 1.5। v is given as v equals to 2 minus t ना, v equals to 2 minus t, तो at t equals to 0 velocity of particle is 2 minus t, t is 0, तो 2 minus 0 it means 2 meter per second, तो initial velocity of this particle is 2 meter per second, initial velocity यही है, initial velocity this particle ये क्या है, initial velocity। initial velocity, initial velocity of this particle is 2 meter per second, तो पुट कर दिया, तो देखो यहाँ से 1.5 मीटर आ गया डायरेक्ट। सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है, आप इसको s1 बोल दीजिए और इसको s2 बोल दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक s1 फाइंड कर लेते हैं, फिर s2 फाइंड कर लेंगे, तो s1 क्या होगा यार, बिकॉज s1 जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, अभी क्या लिखोगे आप 2 इंटू t1 की वैल्यू 2 प्लस हाफ a1 इज -1, दिस इज 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। एंड s2 को आप क्या लिखोगे, s2 यहाँ तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना यार, ये तो जिस डायरेक्शन में क्या है इक्वल्स टू 1 लिख दो, -1 मत लिखो यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन आपने शो कर दिया है, डायरेक्शन आपने शो कर दिया इस डायरेक्शन में, तो 1 लिख दीजिए। अभी देखो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, मतलब ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्सेलरेटेड मोशन, तो s2 को क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा होता है ना फॉर्मूला v इनिशियल, vi लिख दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्लस हाफ a k स्क्वायर, v इनिशियल क्या है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, t इक्वल्स टू 2 to 3 सेकेंड्स, ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब टाइम इंटरवल कितने का 1 सेकेंड, 0 इंटू 1 प्लस हाफ 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा s1 प्लस s2, डिस्टेंस इज s1 प्लस s2, तो 2 प्लस 0.5, आंसर विल बी 2.5। क्लियर है? तो आप विदाउट इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट, कांस्टेंट है तो आप तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आंसर बता सकते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं है then in that case you have to integrate, you have to integrate। clear? नोट कर लीजिए। मिल जाएगा, कोई नहीं।
डन। नहीं नहीं, वेट वेट, डन। छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको भी देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, देखो यहाँ पे 2D मोशन होता है, देन हाउ वी कैन यूज कैलकुलस। 2D मोशन में क्या होगा, जैसे 1D है तो इधर x और y और z, या तो x गिवन होगा और y गिवन होगा और z गिवन होगा। तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। बट अभी 2D मोशन में x एंड y, या y एंड z, और z एंड x, ये प्लेन होगा। x एंड y गिवन होगा, या y एंड z गिवन होगा, और z एंड x गिवन होगा। पहले क्या गिवन होता था, इधर x, सिर्फ x और y और z। यहाँ पे x भी गिवन होगा, y भी गिवन, या तो ये गिवन, या y एंड z गिवन, और z और x ये गिवन हो। तो मैं x एंड y प्लेन कंसिडर करता हूँ, x एंड y ये कंसिडर करता हूँ। तो इस केस में आपको vx फाइंड करना पड़ेगा अलग से। कैसे, vx इक्वल्स टू dx बाई dt एंड vy इक्वल्स टू dy बाई dt, ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। एंड az ax अलग से फाइंड करना, ax इज v dx बाई dt, ऐसे फाइंड, बिकॉज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो डायरेक्शन मैटर करता है। तो आप vx मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन, vy मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन dt, ax means acceleration of particle along x direction, ay means acceleration of particle along y direction, ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले ये vx क्या है यार, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x, vx and vy, velocity of particle along x and y, ax and ay, acceleration of particle along, acceleration of particle along x and y, x and, तो आप how you can find the net velocity of particle, तो net velocity, velocity is a vector quantity, तो net velocity आप v को क्या लिखोगे, v equals to, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, तो vx I cap plus vy j cap। तो इसका how you can find the magnitude of this velocity, तो mod v equals to under root coefficient of I square plus coefficient of j square। नेट एक्सेलरेशन क्या हो, नेट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ax I cap plus ay j cap, mod a equals to under root ax square plus ay square। क्लियर है। इसमें आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट फाइंड vx, vy, ax, ay, then will net velocity will be what, vx I cap plus vy j cap, magnitude of this net velocity is under root coefficient of I square plus I cap square plus coefficient of j cap square। net acceleration is ax I cap plus ay j cap, magnitude of this net acceleration is under root coefficient of I cap square plus j cap square। Any doubt? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करेंगे सर, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस पे क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद क्लास होगी।
न्यू व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, जो ओल्ड वाला है वही रहेगा, बट उसका लिंक जो है सेकंड बैच को मिल जाएगा आज। मैं लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का जो होमवर्क मिला है वो आप सॉल्व कर दीजिए चाहिए, जितना होमवर्क मिला है फर्स्ट बैच। डन। यस यस। डन। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। The coordinates of a moving particle. The coordinates of a moving particle at an instant are given as x equals to 3t, x equals to 3t square, and y equals to 4t square. Find the velocity, and acceleration of particle. At t equals to 1 second. X given, y given. So you have to find vx and vy, then ax and ay, then find velocity at t equals to 1 and acceleration at t equals to 1 second. X equals to 3t square. तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx by dt will be 3 into 2t, 60. एंड ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, dvx by dt हो जाएगा 6 into 1, 6 हो जाएगा. And y is given as 4t square, then vy is dy by dt, it will be 4 into 2t, 8t, and ay is dvy by dt, 8 into 1, तो 8. यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई है, vxi का प्लस vyj का 6ti का प्लस 8tj का. तो at t equals to 1 second, v equals to क्या हो जाएगा, 6 into 1 i का प्लस 8 into 1 j का, it be 6i का प्लस 8j का. And magnitude of velocity is under root coefficient of I square plus coefficient of j square, 36 plus 64, it be 100, 10 meter per second, 10 meter per second. And acceleration क्या हो जाएगा, equals to axi का plus ayj का
ए एक्स इज 6i क्या, ए वाई इज 8j क्या, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, है ना, तो मॉड ए डायरेक्ट कर दीजिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये भी 10 आ जाए, 36 प्लस 64, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। आपका होमवर्क रहेगा काइनेमेटिक्स 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, काइनेमेटिक्स 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 15। Bye bye, take care. Yes, 1 to 15, 15। Bye bye, take care। Yes, done। चलो।